ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 3/6/2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूलहार नहीं पहनने हैं। બાબાએ કહ્યું કે શિવ બાબા ક્યારે કોઈના ફૂલ આદિ સ્વીકાર કરતા નથી, કારણ કે આમ તો જોઈએ તો બાબા બિંદુ છે, તો બિંદુ ઉપર ફૂલહાર કઈ રીતે ચડાવી. બીજું બાબા કહે છે કે હું ક્યારે પૂજ્ય કે પૂજારી બનતો નથી, કે હું કોઈની પૂજા બી કરતો નથી ને મારી કોઈ પૂજા કરતું નથી, હું તો જ્ઞાનના સાગર છું. તો બાબા કહે છે કે તુમ્હારે ફૂલ आदि में स्वीकार नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी संगम पर फूलहार आदि नहीं पहनने. તો બાબા કહે છે સંગમ યુગમાં તમારે બી કોઈ પણ પ્રકારના ફૂલહાર સ્વીકાર કરવાના નથી. ઓમ પ્રશ્ન. भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? ભવિષ્યમાં રાજ્ય તખ્તના અધિકારી માના રાજગાદીના અધિકારી કોણ બને છે? उत्तर. जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं. જે સંગમ યુગમાં માત પિતાના દિલ તખ્ત નશીન માના મમ્મા બાબાનું દિલ જીતવાવાળા છે. બાબાએ વચ્ચે કહ્યું હતું ને મોરલીમાં, પરમ દિવસની જ મોરલીમાં હતું કે બ્રહ્મા બાબા और मम्मा के दिल तख्त नशीन बनो, उनके गद्दी के वारिस बनो. તો બાબાએ કહ્યું કે અગર મમ્મા બાબાનું દિલ જે જીતી લે છે એ જ ભવિષ્યમાં દિલ તખ્ત નશીન બને છે. वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं. मेहनत कर मात पिता से भी आगे जा सकते हैं. બાળકો માતા પિતા કરતાં બી આગળ જઈ શકે છે. માટે બાબા કહે છે કે મમ્મા બાબાના ગદ્દી નશીન મને મમ્મા બાબાની જે ગાદી છે એને સંભાળવા માટે લાયક બનો. કે શિવ બાબાએ બ્રહ્મા તનની અંદર અવતરિત થઈને બ્રહ્મા બાબાને કર્તવ્યો સોંપ્યા, બ્રહ્મા બાબાએ મમ્માને બી સોંપ્યા. તો બ્રહ્મા બાબા મમ્માએ તો શિવ બાબાના હરેક કર્તવ્યનું વહન કર્યું છે. તો આપણે બી એમના બાળકો છીએ, તો આપણે બી એમના ગદ્દી નશીન બનવાનું છે. એમના વારિસ બનવા માટે, એમના દિલ તખ્ત નશીન બનવા માટે તો બાબા કહે છે એમના દિલને જીતવાનું છે. તો સતયુગમાં ભવિષ્યમાં રાજ્ય તખ્ત નશીન બની શકશો. ગીત છે છોડ ભી દે આકાશ સિંહાસન. બાળકો કઈ પ્રાર્થના કરે છે કે શિવ બાબા આકાશ સિંહાસન છોડીને આવો. ઓમ શાંતિ. મીઠે મીઠે સિકિલધે બચ્ચોને ગીત સુના. કયું ગીત સાંભળ્યું? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन. इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है. કારણ કે આપણે શું કહ્યું? છોડ ભી દે આકાશ સિંહાસન. તો પરમાત્મા આકાશ સિંહાસન છોડીને આવે છે તો જરૂર પૃથ્વી પર નથી, તો આપણે ઉપરથી બોલાવીએ છીએ. યાદ કરતે હૈ अब भारत बहुत दुखी है. ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते. આ ગીતો સૃષ્ટિના નાટક અનુસાર બનાયેલા છે. તો બાબા કે જે દુનિયાવાળા આ ગીતોનો અર્થ નથી જાણતા, પણ ગીત ગાતા કરે છે. દુનિયાના ગીતો છે, લોકો સાંભળે બી છે, પરંતુ અર્થ જાણતા નથી. બાપ આતે हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर સુખ દેને કે લીએ. ભગવાન કેમ આવ્યા છે? તો પતિતોને પાવન બનાવવા માટે અને દુખીઓના દુઃખ દૂર કરીને સુખ આપવા માટે.
बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। બાબાએ આવીને આપણને જ્ઞાન આપ્યું, સ્વયંની ઓળખ કરાવી કે હું સાધારણ તનમાં આવું છું અને આવીને સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અંતનું જ્ઞાન આપું છું। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। सृष्टि चक्र तो एक જ છે, ખાલી પરિવર્તન કર્યા કરે છે, નવામાંથી જૂનું, જૂનામાંથી નવી। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना। शरीर एक होय छे, જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે નવું નવું લાગે છે, પછી જેમ વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે તો શરીરની જળજડીભૂત અવસ્થા થઈ જાય છે, તો જૂનું થઈ જાય છે। તો બાબા કહે છે શરીર તો એક જ છે, ऐसे ही सिर्फ नए से पुराना बनता है, वैसे भी दुनिया एक ही है, नए से पुरानी होती है। જેવી રીતે શરીર એક છે, નવામાંથી જૂનું બને છે અને જૂનામાંથી એ શરીર છોડીને નવું ધારણ થાય છે, તો એવી રીતે દુનિયા બી એક છે, નવામાંથી પુરાની થાય છે, જૂની થાય છે। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके, बाप आकर समझाते हैं। बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है। दुनिया नवी हती तो भारत भूमि भी नवी हती, जेने सतयुग कहेवाय छे। अत्यारे भारत भूमि जूनी થઈ ગઈ છે। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, जूनी सृष्टि। ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नवामांथी जूनू तो थयुं, परंतु जरूर नवुं तो बनवानुं छे। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। शुरुआत में बाबाए सत्युगी दुनियाना साक्षात्कार कराव्या हता। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? ए नवी दुनियाना मालिक कौन हता? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। नवी दुनियाना मालिक कौन हता? तो लक्ष्मी नारायण, आदि सनातन देवी देवता जे हता, सर्व देवी देवताओं ए दुनियाना मालिक हता। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। શું યાદ કરવાનું છે નિરંતર? बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। बाबा કહે છે નિરંતર યાદ કરો કે સ્વયં ભગવાન આ સૃષ્ટિ પર આવ્યા છે અને આવીને આપણને રાજયોગ શીખવાડે છે। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसीलिए मैं आता हूँ तब तो गीत बनाया हुआ है। बाबा के जी महिमा तो एक शिव मारी छे, बाकी दुनिया में और कोईनी महिमा छे नहीं। અને સમય મનુષ્યોની તુચ્છ બુદ્ધિ બનાવી દીધા છે। જેમ જેમ કળિયુગનો સમય આવતો ગયો એમ એમ મનુષ્યોની બુદ્ધિ બી કેવી થતી ગઈ, પતિત તુચ્છ, તો કંઈ સમજતા નથી। તો બાબા કહે છે હું આવીને જ્ઞાન આપું છું, માટે તો ગીત બન્યું છે ને, છોડ भी दे आकाश सिंहासन धरती पे आ जाना रे। તો ભગવાન આકાશ સિંહાસન છોડીને ધરતી પર આવે છે। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है।
હરેકનું કર્તવ્ય પોતપોતાનું છે. માટે જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે ભગવાન આકાશ સિંહાસન છોડીને ધરતી પર આવી જાઓ, તો જરૂર આકાશમાંના પરમધામના નિવાસી છે. ધરતી પર નથી તો ઉપરથી બોલાવવા પડે છે ને, તો સર્વવ્યાપીનું જ્ઞાન ઉડી જાય છે. બાપ બાર બાર કહતે हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्माभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो. બાબાએ કયું ફરમાન આપ્યું? आत्माभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनो और इस शरीर के जो भी आर्गन्स है, आँख कान मुख, उसके द्वारा जो बाबा शिक्षा देते हैं उसे धारण करो. बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो. ભલે બાબા કહે છે, બ્રહ્મા બાબાને આપણે જોઈએ છે ચાલતા ફરતા કર્મ કરતા, કારણ કે આ તો સાકાર મુરલી છે. બ્રહ્મા બાબા હતા એ સમયની મુરલી છે. તો બાબા કહે છે કર્મ કરતા ભલે બ્રહ્મા બાબાને સન્મુખમાં જુઓ છો, પરંતુ યાદ કોને કરવાના છે? શિવ બાબાને. ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं. बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है. तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए. બાબા કહે છે આંખોથી ભલે બ્રહ્માનું રૂપ જુઓ છો, પરંતુ એ સ્મૃતિમાં રહે કે જે કરે છે શિવ બાબા કરે છે. ભલે બ્રહ્મા તન એક માધ્યમ છે, બ્રહ્મા બાબા કંઈ કરતા નથી, પણ શિવ બાબા કરાવે છે. शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा इनका शरीर कोई काम का नहीं. शिव बाबा ना होत तो ब्रह्मा बाबाने ब्रह्मा नाम भी ना મળ્યું હોત ને. તો બાબા કહે છે કે शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा इनका शरीर कोई काम का नहीं. हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है. हर घड़ी बाबा કહે છે समझो कि ब्रह्मानी अंदर शिव बाबा છે. वह इन द्वारा पढ़ाते हैं. तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है. બાબા પાક્કું કરાવે છે આજે કે બ્રહ્મા બાબા તમારા શિક્ષક નથી. તમારા શિક્ષક કોણ છે? સુપ્રીમ ટીચર શિવ બાબા, કે જે બ્રહ્મા દ્વારા જ્ઞાન આપે છે. याद भी उनको करना है. કોને યાદ કરવાનું છે? બ્રહ્મા બાબાને नहीं, शिव बाबा ने याद करो. कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है. બાબા કહે છે શરીર તો ચાહે બ્રહ્મા બાપનું બી છે, પણ બ્રહ્મા બાપના શરીરને બી યાદ નહીં કરવાનું. તો બાબા કહે છે કભી जिस्म को याद नहीं करना है. बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है. निराकारને યાદ કરો, પોતાના શરીરને બી યાદ નહીં કરો. પોતાની નિરાકાર આત્માને યાદ કરો, તો સાથે સાથે નિરાકાર શિવ બાબાને યાદ કરો. बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ. परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके. બાળકો ભગવાનને યાદ કરે છે, હે પ્રભુ આવો અને આવીને જ્ઞાનયુગ શીખવાડો. તો પરમપિતા પરમાત્મા સિવાય તો કોઈ જ્ઞાનયુગ શીખવાડી ન શકે. बच्चों की बुद्धि में है वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं. फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है. શિવ બાબા આવીને ગીતાનું જ્ઞાન સંભળાવે છે. અત્યારે બુદ્ધિમાં બેસી રહ્યું છે, પરંતુ પછી આ જ્ઞાન શું થઈ જાય છે? લુપ્ત થઈ જાય છે. વહાં દરકાર ही नहीं. કહા દરકાર નહીં? સતયુગમાં. તો સતયુગમાં આ જ્ઞાનની કોઈ જરૂરત નથી. તો જ્યારે આત્મા સતયુગમાં જાય છે તો આ જ્ઞાન પ્રાય લોપ થઈ જાય છે, લુપ્ત થઈ જાય છે. राजधानी हो गई, सदगति हो जाती है.
ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति होने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा કહે છે જ્ઞાન આપ્યું તો દુર્ગતિમાંથી સદગતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, બાકી તો બધું જે છે એ ભક્તિ માર્ગની વાતો છે। મનુષ્ય જપ તપ દાન પુण्य आदि कुछ करते हैं तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्गની વાતો કઈ સમજાવી બાબાએ? તો મનુષ્ય જે જપ તપ દાન પુण्य કરે છે એ શું છે? ભક્તિ માર્ગની સામગ્રી। इससे मुझ कोई मिल नहीं सकता। बाबा કહે છે જપ તપ દાન પુण्य કરવાથી કોઈ મને મળી શકતું નથી। આત્મા કે પંખ તૂટે હુએ, કાલે બી બાબાએ સમજાવ્યું હતું ને કે બાબા સાથે ઉડવું હોય તો શું કરવું પડશે? બાબા સાથે ઉડવું હોય તો પહેલા જે મારું છે, આ શરીર મારું, શરીરના સંબંધો મારા, શરીર સાથે સંકળાયેલા પદાર્થો મારા, આ શરીરની કર્મેન્દ્રિયો મારી। તો બાબા કહે છે જે મારું લિસ્ટ છે ને એ બધું તારું કરી દો। તારું કરી દેશો તો જ બાબા સાથે જઈ શકશો। तो आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, तो पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। અત્યારે હરેકની આત્મા કેવી થઈ ગઈ છે? પથ્થર બુદ્ધિ। તો બાબા કહે છે પથ્થરમાંથી પારસ બનાવવા માટે હું આવું છું। તો બાપ कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। દુનિયા કેવી ભરાયેલી છે? હા, બાબા એક સાનું ઉદાહરણ આપ્યું, સરસોમાંના રાઈના દાણા કેટલા ઝીણા હોય છે અને એક ઝીણા કેટલી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય પરંતુ ઓછી જગ્યામાં સમાઈ જાય। તો આજે બાબા કહે છે સરસો મિसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। સતયુગમાં તો આટલા બધા મનુષ્યો હોતા નથી, અત્યારે તો કેવા છે? સરસોમાંના રાઈ જેવા છે, એકલા અસંખ્ય સંખ્યામાં મનુષ્યો છે। બાબા કહે છે સતયુગમાં તો વૈભવ ઘણો છે પરંતુ જનસંખ્યા ઓછી છે। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है फिर नई हो जाएंगी, वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। અત્યારે કેવી જમીન છે? રેતીલીમાંના કોઈ કસ જ નથી જમીનની અંદર। ગમે તેટલું ઉત્પાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરો, ઉપરથી અનેક પ્રકારના ખાતરો નાખીએ છીએ પરંતુ જેવી ગુણવત્તા જોઈએ પાકની અંદર એ મળતી નથી। બાબા કહે છે સતયુગમાં તો જમીન બી નવી થઈ જશે। एवरीथिंग इज न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। બાબા કહે છે હવે પુરાની દુનિયાને તોડીને નવી દુનિયામાં જવાનું દિલ થાય છે ને, તો હવે દિલ ત્યાં લગાવવાનું છે। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। બાબા કહે છે જવાનું નવી દુનિયામાં છે તો નવા શરીરને નવી દુનિયાને યાદ કરો, આ શરીરની કોઈ ક્યાંય કિંમત જ નથી। શિવ બાબા કો તો શરીર હે ही नहीं, શિવ બાબાને તો પોતાનું શરીર નથી, પરંતુ બાબા કહે છે બાળકોના બી શરીરની અત્યારે સંગમ યુગ છે ત્યાં સુધી સેવા માટે જરૂર છે, પુરુષાર્થ માટે જરૂર છે, બાકી શરીરની કોઈ કિંમત છે નહીં। कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाएगा। કારણ કે શિવ બાબાને હાર પહેરાવીએ તો બ્રહ્મા તનમાં શિવ બાબા આવે તો માધ્યમ બ્રહ્માને રાખીને પહેરાવશે ને, તો હાર કોને પહેરાવશે? શિવ બાબાને। શિવ બાબા તો કઈ રીતે પહેરશે? તો બ્રહ્મા બાબાને હાર પહેરાવે છે તો બુદ્ધિयोग કોની અંદર જશે? બ્રહ્માની અંદર। शिव बाबा कहते हार की दरकार ही नहीं,
तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। શું બન્યા છે આપણે? આપે ही पूज्य, आपे ही पुजारी। મને પોતાની જાતે પોતાની પૂજા કરવા લાગ્યા। हाँ, तो अपने ही चित्रों की पूजा करने लगते हैं। तो बाबा कहते, मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार है। बाबा કહે છે મને કોઈ ફૂલહાર ચડાવવાની જરૂરત જ નથી, કારણ કે હું પૂજ્ય બી નથી બનતો। मैं क्यों यह पहनूं? इसीलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। बाबा क्यारे फूल माला नो स्वीकार करता नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। અત્યારે તો બાબા કહે છે તમે પૂજ્ય બનવાનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છો, તો સંગમ યુગ દરમિયાન કોઈ ફૂલમાલાની સ્વીકાર કરવાની જરૂરત નથી। સતયુગમાં ભલે પૂજ્ય બની જાઓ, પછી જ્યારે પૂજ્ય બન્યા પછી ગમે તેટલા ફૂલહાર પહેરો। हाँ, जितना चाहिए उतना पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलव्ड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जेन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं कहेंगे। यहाँ तो लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, अब इस शरीर को याद नहीं करना है। बाबाए શું કહ્યું? अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। શું કરવાનું છે? आत्मनिश्चय और बाबा ने याद। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होगा ना। सोनू जेटला कैरेटનું હોય તો દાગીનો બી એટલા कैरेटનો બનશે। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। આત્માને ક્યારે નિર્લેપ કહેવાય નહીં, કારણ કે જેવું શરીર કર્મ કરે છે તો કર્મના સંસ્કાર આત્માની અંદર ભરાય છે, ચાહે પુણ્ય કર્મ કરશે ચાહે પાપ કર્મ કરશે। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा શું કરે છે? ब्रह्मा द्वारा शिक्षा आपे छे। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा આપણને જ્ઞાન આપે છે, પરંતુ સાથે સાથે બ્રહ્માની આત્મા બી જ્ઞાન લઈ રહી છે, शिव બાબાને યાદ કરે છે। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। સૌથી ઉપર પરમધામ છે, પરંતુ પરમધામ અને મનુષ્ય સૃષ્ટિની વચ્ચે પરમાત્મા સંગમ યુગ દરમિયાન સૂક્ષ્મ વતનની રચના કરે છે। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हाँ, बाबा કહે છે એક ભગવાનને બધા ભૂલી ગયા છે અને શું કરે છે? અનેકોને યાદ કરવા લાગ્યા। તમો પ્રધાન બન્યા તો એક પરમાત્માને ભૂલીને ठिक्कर भीतर सबकी पूजा કરવા લાગ્યા। हम जानते हैं
जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। બાબા કહે છે જે બી ચાલી રહ્યું છે, નાટક શૂટિંગ થઈ રહ્યું છે। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है। बाबा કહે છે કે નાટકની અંદર જે બી રેકોર્ડ થઈ ગયું પછી એ જ પ્લે થશે। એવું નહીં કે પછી કોઈ પ્લે કર્યા પછી કોઈ બદલી શકશે, નહીં, જે નોંધાઈ જશે, જે શૂટિંગ થઈ જશે એ પછી રિપીટ થયા કરતું હોય છે। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। बाबा કહે છે તમે કોણ છો? કલાકાર છો, એક્ટર્સ છો, તો આ નાટકને સાક્ષી બનીને જુઓ। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। બાબા કહે છે એક એક સેકન્ડ ડ્રામા અનુસાર પાસ થાય છે। ચાહે ઝાડનું પત્તું બી હિલ્યું તો બી ડ્રામા પાસ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, यह सब ड्रामा में नोंधे। ઘણા લોકો શું કે ભગવાનની મરજી વગર તો ઝાડનું પાંદડું બી ના हिले, તો બાબા કહે છે ભગવાન કોઈ હુકમ નથી કરતા એક એક પાંદડાને હલવા માટે। બાબા કહે છે એ સબ ડ્રામા में નોંધે, કારણ કે ડ્રામામાં નોંધાયેલું છે। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा કહે છે નાટકને આ સૃષ્ટિ ચક્રને યોગ્ય રીતિથી સમજવાની જરૂર છે। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। ચિત્રો બી બાબા કે છે કેટલા સરસ બનાવે છે। સૃષ્ટિ ચક્રનું ચિત્ર જોઈએ તો એમાં બાબા કહે છે ઘડિયાળની જેમ કાંટા બી બતાવે છે કે હવે કેટલો સમય બાકી છે। કલયુગ અંત और सतयुग आदि का संगम है। અત્યારે કયો સમય છે? કળયુગનો અંત અને સતયુગના આદિ। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। શું સમજવાનું છે કે આપણને કોણ ભણાવે છે? તો ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે। આપણે ભગવાનના વિદ્યાર્થી છીએ, ગોડલી સ્ટુડન્ટ છીએ। આપણા ટીચર, આપણા શિક્ષક સ્વયં ભગવાન છે। હવે વિચારો કે જેના શિક્ષક સ્વયં ભગવાન હોય તો વિદ્યાર્થી કેવા હોવા જોઈએ? આજ્ઞાકારી, ઈમાનદાર, વફાદાર, જે બી શિક્ષક ભણાવે એની પૂર્ણ તૈયારી કરવાવાળા, રેગ્યુલર, પંચ્યુઅલ, કમ્પ્લીટ હોવા જોઈએ ને, ક્લીન, ક્લિયર। એક ટીચરની સમાન, એક શિક્ષકની સમાન ઉદાહરણ મૂરત હોવા જોઈએ બાબાના બાળકો। તો બાબા કહે છે તમે ગોડલી સ્ટુડન્ટ છો। ભગવાન વાચ, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। बाबा આપણને શું બનાવવા આવ્યા છે? રાજાઓના રાજા, મહારાજા, લક્ષ્મી નારાયણ સમાન બનાવવા આવ્યા છે। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। જે દ્વાપર અને કળિયુગના રાજાઓ છે એ બી કોની પૂજા કરે છે? લક્ષ્મીનારાયણની। તો લક્ષ્મીનારાયણને પૂજ્ય બનાવવાવાળા કોણ છે? તો શિવ બાબા। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने हैं। સતયુગમાં આપણે પૂજ્ય હતા અને અત્યારે પૂજારી બની ગયા છે। બાબા તો નહીં બનતી।
बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ। बाबा શું કહે છે? નથી હું पुजारी बनतो कि નથી पूज्य बनतो, इसीलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। बाबा खुद क्यारे हार पहनता भी नहीं कि कोईने पहरावता भी नहीं, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है। बाबा कहे छे फूलनी माळाओ पर कोनो अधिकार छे? तो देवताओनो। अत्यारे संगम युगमां मनुष्यनो कोई अधिकार, कळियुग अंतमां कोई भी मनुष्यनो हक नहीं कि ए फूलनो हार स्वीकार करे। उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है। सतयुगना देवताओना आत्मा अने शरीर बंने पवित्र छे, स्वच्छ छे, माटे एमने हार पहेरावी शकाय। वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। कयो हार बनवानो छे आपणे? विष्णुनी माळा, गळानी माळा, वैजंती माला। विष्णुनी गळानी अंदर जे वैजंती माला होय छे ए हार बनवानो छे। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है अने ए माळाना नंबरवार आपणे मणका बनीशुं। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। जेने 5000 वर्ष पहला जे रीतनो पुरुषार्थ कर्यो हतो ए रीतनो ज करशे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। हाँ, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। बाबा कहे छे जेवी रीते तख्त होय छे कि दुकान में सेठ होय छे, पछी भागीदार होय, मैनेजर होय, तो एनी नीचे वाला ने लिफ्ट मळे, तो अहींया भी एवी रीते छे। तुम बच्चों को भी मात पिता पर जीत पानी है। शुं करवानुं छे? मात पिताना दिलने जीतवानुं छे। तो बाबा कहे छे मात पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, मात पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। जेवी रीते दुनियानी अंदर જોઈએ છે કે મા બાપ ભલે ગરીબ હશે પરંતુ બાળકો એટલી મહેનત કરે છે કે એક સુખ સાહેબીનું જીવન પોતાનું બનાવી શકે છે કે પોતાના માતા પિતા કરતા भी આગળ વધે છે। तो बाबा कहते बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए। इसीलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। बाबाए શું કહ્યું કે અત્યારે તમે મારા દિલ રૂપી તખ્ત પર જીત મેળવો। તો બાબાનું દિલ તખ્ત જીતવાનું છે। તો સતયુગમાં શું મળશે? ભવિષ્યમાં राज्य तख्तना अधिकारी बनी શકો। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। बाबा केटलो पुरुषार्थ करावे छे, केटली मेहनत करावे छे, बाबा केटली हिम्मत आपे छे। बाबा कहे छे एटलो पुरुषार्थ करो कि नर माथी नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है एक। कयुं लक्ष्य छे आपणुं? नर माथी नारायण अने नारी माथी लक्ष्मी। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वेराइटी पद है। बाबा कहे छे लक्ष्य तो मैं एक ज आप्युं छे, कयुं? लक्ष्मी नारायण बनवानुं। पण राजगादी स्थापन थई रही छे, राजाई बनी रही छे, तो एमांय वेराइटी पद छे। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
कयो पुरुषार्थ करवानो छे? माया पर जीत मेळववानो। बच्चों आदि को भी बल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। काले भी बाबाए कही सरेंडर हो जाओ। कोई सरेंडर थवुं माने घर बार छोड़ीने आवी नहीं जवानुं। भले बाल बच्चा छे, बाळको छे, एमने प्यार भी करो, घर भी चलाओ, परंतु कई रीते? ट्रस्टी बनीने। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है। हाँ? भक्ति मार्ग में कहता है भगवान तमारी कृपा थी आ बधी प्राप्ति थई छे, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। बाबा के छे एक बाजू तमे कहो छो कि आ बधुं तमे आपेलुं छे, अगर तमारुं बाळक छे के संपत्ति छे मैं आपेली छे, मने जरूर पड़ी तो मैं लई लीधी, तो रोवानी सी जरूर? रोवानी जरूरत ज नथी, पण दुनिया ज रोवानी छे। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजित राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि नहीं होती। सतयुग में कोई पण प्रकारना दुखनी लागणी भी नहीं होती। त्या एक शरीर छोड़ीने बीजू धारण करी ले छे। त्या कोई बीमारी आदिनी कोई बात भी नहीं होती। एवर हेल्थी निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों सुधी एवर हेल्थी वेल्थी हैप्पी निरोगी काया। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। जे शरूआत में दादीओ होता तो बाबाए बधाने साक्षात्कार कराव्या हता सतयुगी दुनिया। तो एमां बताव्युं तो कि स्वयंवर केवी रीते थाय छे। तो सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। जे शुरुआत में बाबा साक्षात्कार करावता हता ए समय हवे पसार थई गयो। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। शुरुआत में एटलुं ज्ञान न हतुं, खाली साक्षात्कार थी। खेल साक्षात्कारनी बाबा शुं कहे छे खेलपाल। शुरुआत में केम रमाड़ता होय तो बाळक होय तो बाळकने खिलौना आपवा पड़े, रमकड़ा आपे तो ए रमे, तो आपणी पासे आवे। तो बाबा ए समय साक्षात्कार माने एक प्रकारना खेलपाल करावता हता। ए समय कोई एटलुं ज्ञान न हतुं। अत्यारे तो ज्ञान छे तो ज्ञानथी ताकत आवी छे। यह भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का कितना भारी पार्ट है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। शिव बाबा के छे भक्ति मार्ग तमारू चालू होय छे, ज्यारे भक्ति मार्ग होय छे त्यारे भी ऊपर बैठा बैठा मारे केटला काम करवा पड़े छे। तमे जेनी भी भक्ति करो छो, परंतु ए भक्तिनुं फळ तो मारे आपवुं पड़े छे। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। गीता ज्ञानदाता कोने कही दीधा तो कृष्ण ने, तो कृष्णनु नाम आवी गयुं तो शुं थयुं? बाबा कहे छे कि निराकार साथे जे प्रीत हती ए टूटी गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। बाबाए आवीने आपणे सहज राजयोग शीखवाड्यो, दुनिया ने बदली
અને દુનિયા તો હર 5000 વર્ષ बाद बदलाती रहे छे, युग फरता रहे छे। तो बाबा कहते छे सृष्टि के चक्र को भी अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। અત્યારે સતયુગના દેવી દેવતાઓને બી કોઈ નથી જાણતું, ખાલી એમની યાદગાર છે, એમની નિશાનીઓ છે। तो बाप समझाते हैं हमेशा समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। हमेशा शिव बाबा ने याद करता रहो, એવું સમજો કે અમે શિવ બાબાના છીએ, શિવ બાબા અમને જ્ઞાન આપે છે, શિવ બાબા બ્રહ્મા દ્વારા શિક્ષા આપે છે અને આપણે જ્ઞાન લઈને બાપ સમાન બની રહ્યા છે। તો શિવ બાબાને જેટલું યાદ કરતા રહીશું એટલી મજા બી આવશે। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शिव बाबा શું છે? આપણી આત્માના પિતા બી છે, शिक्षक भी છે અને सतगुरु भी છે। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। पिता शिक्षक होई शके परंतु क्यारे गुरु होई शके नहीं। इनका माना बाबा का फादर भी टीचर था ना। ब्रह्मा बाबा ना पिता भी एक शिक्षक था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। એ શરીરના પિતા અને શરીરને ભણાવનાર શિક્ષક થઈ ગયા। શિવ બાબા તો આત્માના પિતા અને આત્માને ભણાવે છે। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता। आशिक माशूकनो जेवी रीते प्यार होय छे, तो बाबा के छे एवो प्यार मने करो। बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। शिव बाबा શું છે? જ્ઞાનના સાગર છે, પ્રેમના સાગર છે અને આ પતિત દુનિયામાં આવીને આપણને ઊંચા બનાવે છે। ગાયન भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। કયું ગાયન છે? મનુષ્યમાંથી દેવતા બનાવ્યા, वार न लागी। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में मनुष्य माथी देवता बनवानुं आपणुं लक्ष्य छे। तो एना माटे आ ज्ञान लेवानुं छे। गुरु नानक ने भी कहा था ना, मुत पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सौंपसे। मुत पलीती कपड़ धोए माना अपनी आत्मा एकदम पतित बनी गई छे, मेली थई गई छे, तो हवे एने धोवानी छे। तो कई रीते धोवानी छे? लक्ष्य सौंपसे। लक्ष्य साबु, कयुं लक्ष्य साबु? के मारे मनुष्यमांथी देवता बनवानुं छे અને સતયુગમાં દેવ પદની પ્રાપ્તિ કરવાની છે। તો આ લક્ષ્ય છે, તો એ લક્ષ્ય દ્વારા પાવન બનો। તો બાબા कहता है
मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। बाबा શું બનીને આવ્યા છે? ધોબી। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनका कभी याद नहीं करना है। किनको याद नहीं करना है? दादा को, माना ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, तो उनको याद करो। इनसे मीठा वह है, ब्रह्मा बाबा करता भी मीठा शिव बाबा है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम शिव बाबा को याद करो। भले आँखों थी ब्रह्मा बाबा देखाय, परंतु याद शिव बाबा ने करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कौड़ीमांथी हीरा तुल्य बनावे छे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। कई रीते बधाने चलावानुं छे? प्यारथी, परंतु ट्रस्टी बनीने। मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। भले आ आँखोथी बधुं ज जुओ, सृष्टिने जोईए छे तो सृष्टिने बी भूली जाओ, शरीरने जोईए छे तो शरीरने भूली जाओ। बाबाए एटले सुधी कह्युं के आ आँखोथी ब्रह्मानुं रथ देखाय छे, परंतु ए रथने बी याद नथी करवाना। एक शिव बाबाने याद करो। यहाँ फूलहार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनाए। बाबा कहे छे संगम युग में फूलहार स्वीकार करवानी आशा नहीं राखो कि कोई मने फूलहार पहेरावे, मारू मान सम्मान करे। नहीं, अत्यारे खुशबूदार फूल बनो। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति ने परिवर्तन करी दो अने चंचल वृत्तिनुं परिवर्तन करी वायुमंडल ने सतो प्रधान बनाववा माटे श्रेष्ठ आत्मा बनो। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। बाबा कहे छे तमारा माथे केटली मोटी जवाबदारी छे, बाबाए कार्य केटलुं मोटुं सौंप्युं छे, तो बाबा कहे छे मोटा कार्यनी स्मृतिमां राखो अने मनना विचारोने शांत करो। अगर कोई अति